Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Depreciation and Amortization. Today's class is very important because we are going to understand how to maintain an asset account, that is, how to prepare an asset account when there is purchase and sale of an asset during the year. So we shall understand how to prepare an asset account, for example, machinery account, when there are more than two machines, one of the machine is purchased and few machines are sold. तो ऐसे situation में, right, how to prepare machinery account, that we shall understand. Clear है? Okay. Sir, disposal account is there. We'll do that also. So with the help of illustration 1, let us understand illustration 7 डिस्कस कर रहे हैं. A firm purchased on 1st January 2020 certain machinery for rupees 5,82,000 and spent rupees 18,000 on its erection, which means installation. तो फर्म ने 1 जनवरी 2020 को एक मशीन परचेज किया है फॉर रुपीज 5,82,000 और उस पर द फर्म हैज स्पेंट रुपीज 18,000 ऑन द इंस्टॉलेशन. सो ये जो 18,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन with 5,82,000. So the original cost of the machine is equal to 5,82,000 plus 18,000 is equal to rupees 6 lakh. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली, हर साल, ऑन 31st December. यानी अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st December and depreciation is charged at the rate of 10% per annum on written down value, means WDV basis. Clear है? So depreciation का rate is 10% per annum. Method is WDV. Year ends on 31st December every year. Okay. सो ये जो मशीन है जो फर्म ने 1 January 2020 को परचेज किया है, 1 January इज द ओपनिंग डेट, द स्टार्टिंग डेट. तो ये जो मशीन है ये 2020 में कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? 12 मंथ्स के लिए यूज हुआ. 1 January को परचेज किया था, ईयर एंड्स ऑन 31st December. तो 1 January to 31st December this machine was used for 12 months, यानी फुल ईयर. तो ये मशीन पर हम 2020 में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. करेक्ट? ये मशीन 1 है, द फर्स्ट मशीन. देन ऑन July 1, 2020, सेम ईयर, July 1, 2020, another machine, यानी मशीन 2 for rupees 2 lakh was acquired, means purchased. The machine 2 was purchased for rupees 2 lakh on July 1, 2020, machine 2. So this machine 2 was used for how many months in the year 2020? For 6 months. July 1 to 31st December is 6 months. So we shall charge depreciation for 6 months. अच्छा, जब भी मशीन परचेज करते हैं क्या एंट्री पास होता है?
machinery account debit to bank. On 1st July 2021, which means the next accounting year, 2021, on 1st July 2021, in the next accounting year, the machine purchased on 1st January 2020. The machinery purchased on 1st January 2020. So we are talking about machine 1. Machine 1 was purchased on 1st January 2020. So the machinery purchased on 1st January 2020 having become obsolete. Obsolete means it is outdated. Why? Due to technological advancement. Maybe a new machine has come up in the market. So this old machine has become obsolete, outdated. So the firm can no longer use this machine. And this machine was auctioned, means sold for rupees 3,86,000. So क्या हुआ? On 1st July 2021, which means in the next accounting year, on 1st July 2021, machine 1, which was purchased on 1st Jan 2020, was sold because it has become obsolete. Having become obsolete, was auctioned, means sold for rupees 3,86,000. So machine 1 sold. Machine 1 sold. कब सेल हुए ये? 1st July 2021. So 2021 में, only in 2021 I'm talking about. So in the year 2021, this machine was sold on 1st July 2021. So before the sale, for how many months this machine was used in 2021? It was used for 6 months. It was used for 6 months. Before selling of the charge. So this machine was used for 6 months in the year 2021 before it was sold. January to June. So सेल का एंट्री पास करने से पहले अपने 6 months का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. Then we shall calculate profit or loss on sale of machine. And on the same date, fresh machine, fresh machinery, which means this is machinery M3, machinery 3, was purchased at a cost of rupees 4 lakh. So new machine was purchased at a cost of rupees 4 lakh. This is machine 3. When? On 1st July 2021. So in the year 2021, this machine 3 was purchased on 1st July 2021. So for how many months it was used in 2021? July to December, 6 months. तो इस पर हम 6 months का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, राइट. सो ये 3 मशीन का क्वेश्चन है, अपने को मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करके देना है. ठीक है, राइट. वेरी इजी क्वेश्चन. वी हैव ऑलरेडी डन these type of questions in class 11, so it is very easy to solve. So we know how to solve this question, but अपने को एक स्टाइल सीखना है to prepare machinery account. Basically we need to understand how to present our workings as in हम लोग को depreciation calculate करना है, profit or loss on sale of machinery calculate करना है. तो ये सब वर्किंग्स को कैसे प्रेजेंट करना है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो अपने को क्या करना है, वर्किंग्स को अपने प्रेजेंट करेंगे एक टैब्यूलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में, विच वी कॉल एज शेड्यूल ऑफ मशीन. सो अपने को विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी शैल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर दिस टेबल, शेड्यूल ऑफ मशीन. This table is for the workings to show the amount of depreciation, year wise, machine wise, and also profit or loss on sale of machine. तो अपने को schedule prepare करना सीखना है. Many of us must have learned how to prepare
दिस टेबल इन क्लास 11। तो उन लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने क्लास 11 में शेड्यूल प्रिपेयर करना नहीं सीखा है, उनके लिए पहली बार सीखेंगे तो समझना जरूरी, बिकॉज एग्जाम में द इंस्टीट्यूट expects you to prepare the schedule। इंस्टीट्यूट को शेड्यूल चाहिए अपने वर्किंग्स में। देर इज अ रीजन, बिकॉज आज के डेट में हर एक बिजनेस एंटिटी शेड्यूल ऑफ मशीन्स मेंटेन करता है। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप शेड्यूल के फॉर्म में सारे वर्किंग्स को प्रेजेंट करके दो। ठीक है, तो आपको ये टेबल बनाना है एग्जाम में, तो इसको अपने को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? वेरी द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज हर एक बिजनेस एंटिटी शेड्यूल मेंटेन करता है। सो यू बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट doing CA and CMA, you need to understand and know how to prepare schedule of machines। तो क्या करना है अपने को? दो चीज करना है। नंबर वन, we need to prepare machinery account, that is a ledger account of machinery, and also we need to prepare schedule of machines to show all the workings। तो ये दो चीज करना है। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे? एग्जाम में हम जैसे आंसर बुक के लेफ्ट हैंड साइड पेज में मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, एंड ठीक उसके बगल में राइट हैंड साइड पेज में वी शैल ड्रॉ द शेड्यूल। तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। सो वी शैल टेक टू पेजेस फेसिंग ईच अदर, नॉट आगे पीछे, टू पेजेस फेसिंग ईच अदर। तो आंसर बुक के लेफ्ट हैंड साइड पेज में मशीनरी अकाउंट बनेगा, राइट हैंड साइड पेज में शेड्यूल को प्रिपेयर करना है। एंड हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट और शेड्यूल दोनों को साइमल्टेनियसली चलाएंगे। एज एन कि जैसे जैसे हम लोग शेड्यूल में वर्किंग्स करते जा रहे हैं, कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं, सेम टाइम में उस अमाउंट का पोस्टिंग हम लोग मशीन अकाउंट में भी करते जाएंगे। तो मशीनरी अकाउंट एंड शेड्यूल दोनों को साथ साथ करना है। तो जैसे जैसे हम शेड्यूल में वर्किंग्स कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सेम टाइम मशीनरी अकाउंट में भी पोस्टिंग करते जाना है। ठीक है, दोनों को साथ साथ। राइट? तो ये कैसे करना है वो अपने को समझना है। राइट? ओके, तो चलो क्लियर। शेड्यूल बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे कितने मशीन्स है इस क्वेश्चन में? देयर आर थ्री मशीन्स, M1 M2 M3। सो हर मशीन के लिए एक कॉलम बनेगा शेड्यूल में, एंड डिटेल्स के लिए, पर्टिकुलर्स के लिए एक कॉलम। तो शेड्यूल में टोटल चार कॉलम। तो शेड्यूल में क्या होता है? जितने मशीन्स है हर मशीन के लिए एक कॉलम बनेगा, एंड पर्टिकुलर्स के लिए एक कॉलम। तो इसमें तीन मशीन्स है, तीन कॉलम एंड पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, यानी टोटल में चार कॉलम। एंड बगल वाले पेज में मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहे हैं अपने। Copy an example with this one. हम्म, Then with this one. That's it. थोड़ा सा छोटा बस, लिटिल, वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट।
This type of table equals to make what is called. Hmm? This type of table equals to make what is called. Hmm. ओके, रेडी। सो सबसे पहले शेड्यूल को स्टार्ट करते हैं। पहले लिखो डेट ऑफ परचेज। मशीन 1 का डेट ऑफ परचेज इज 1 Jan 2020। मशीन 2 का डेट ऑफ परचेज इज 1 Jan 2020। मशीन 3 का डेट ऑफ परचेज इज, सॉरी, मशीन 2 का परचेज इज 1 July 2020। मशीन 2 का डेट ऑफ परचेज इज 1 July 2020। मशीन 3 का डेट ऑफ परचेज इज 1 July 2021। ठीक है, चेक द डेट्स। देन कॉस्ट ऑफ परचेज। मशीन 1 का कॉस्ट ऑफ परचेज इज 5,82,000 प्लस 18,000 which is equal to rupees 6 lakh. Machine 2 का cost of purchase is 2 lakh and machine 3 का cost of purchase is 4 lakh. अपर्णा क्लियर है यहां तक? यस सर। ये टेबल को स्टार्ट ऐसे करना है, टेबल को स्टार्ट ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक मशीन का डेट ऑफ परचेज एंड देन कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, ठीक है, चलो हमें अकाउंट और शेड्यूल दोनों को साथ साथ चलाना है। तो सबसे पहले 1/1/2020 को मशीन 1 इज परचेज्ड। सो व्हेन मशीन इज परचेज्ड, एंट्री इज machinery account debit to bank account 1/1/2020. On the debit side of machinery account, we write to bank account. Amount is rupees 6 lakh. Clear है? Then 2020 में और क्या हुआ? मशीन 2 भी परचेज हुआ है। One more purchase. On 1st July 2020, machine 2 is purchased. So on the debit side of machinery account, 1st July 2020, to bank account. How much? 2 lakh. तो ये दो मशीन परचेज हुए। 2020 में तो ऐसा कोई मशीन सेल नहीं हुआ, यही दो मशीन परचेज हुए। सो अभी 2020 के ईयर एंड में आ जाओ। ईयर एंड इज ऑन 31st December 2020, where we shall charge depreciation. तो शेड्यूल में डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्लस या माइनस? लेस डेप्रिसिएशन। मशीन 1 के केस में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। सो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन इज 60,000। मशीन 2 के केस में 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज, टेल मी, 10,000। डेप्रिसिएशन को लेस करो, हमने क्या डिसाइड किया था अपने को, अकाउंट और शेड्यूल दोनों साथ साथ चलाना है। तो अभी जस्ट हमने शेड्यूल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। मशीन 1 का 60,000, मशीन 2 का 10,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज
60,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 70,000। तो ये अपने को अकाउंट में भी डालना है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट विल बी 31st December 2020। बाय डेप्रिसिएशन के नीचे ब्रैकेट्स में टेल मी 60,000 प्लस 10,000। The table is already now. ओके, तो अभी 2020 का तो ईयर एंड हो चुका है, तो मशीन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। साथ में शेड्यूल में भी अपने लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको क्या बोलते हैं? WDV, रिटन डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर वी राइट इट डाउन with the amount of depreciation. Depreciation minus करने से asset का value comes down. So the value is called written down value. We are writing off depreciation, which is bringing down the value of machine. Okay. So देखो schedule में देखो WDV on 31st December 2020 कितना रहा? 5,40,000 मशीन 1 का एंड 1,90,000 मशीन 2 का। क्लियर है बेटा? देन अकाउंट में भी क्लोजिंग बैलेंस निकालो। Machine is an asset account. All the assets and the liabilities account are balanced in the year end. So इनका closing balance निकालो। Tell me. Closing balance is coming to rupees 7,30,000. अब if I need to cross check the 7,30,000, how can I do that? 7,30,000 को अगर क्रॉस चेक करना है तो कैसे क्रॉस चेक कर सकता हूं? शेड्यूल में देखो, मशीन 1 एंड मशीन 2 का WDV दोनों को ऐड करो। 5,40,000 प्लस 1,90,000 इज इक्वल टू 7,30,000, है ना? बिकॉज अभी एज ऑन डेट 31st December 2020 फर्म के पास मशीन 1 एंड मशीन 2 है एंड दोनों का WDV का टोटल है 7,30,000, राइट? देखो क्या होता है ना, जैसे बिजनेस एंटिटी के पास 2 मशीन है, बट ऐसा तो नहीं है कि हर एक मशीन के लिए एक सेपरेट मशीन अकाउंट बना रहे हो। एक ही मशीन अकाउंट बना रहे हैं जिसमें दोनों मशीन्स का काउंटिंग हो रहा है। तो मशीन अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है 7,30,000, ये मशीन 1 एंड मशीन 2 दोनों का है। तो अगर बिजनेस एंटिटी को ये जानना है कि 7,30,000 में मशीन 1 का वैल्यू कितना है, मशीन 2 का वैल्यू कितना है, तो वो तो अपने को मशीन अकाउंट से पता नहीं चलेगा, because machine account is one single account for all the machines where separate values of each machine is not shown. तो अगर बिजनेस एंटिटी को जानना है कि 7,30,000 में मशीन 1 मशीन 2 का अलग अलग सेपरेट वैल्यूज कितना है, because business entity owns these machines, so it should know the separate values of each machine. तो ये कहां से पता चलेगा? From the schedule of machine. That is why schedule of machine is prepared by each and every business entity, because it helps us to maintain the details of each machine separately. Okay. Next,
नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 2021, ओपनिंग डेट 1 जन 2021 को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। सो डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 7,30,000। अभी 2021 में क्या हुआ है? सबसे पहले तो मशीन 1 सेल हुआ है, बिकॉज मशीन 1 ऑब्सोलीट हो गया था, सो इट वाज ऑक्शन। एंड ये कब हुआ? मशीन 1 को सेल कब किया? ऑन 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 में ऑक्शन होने से पहले मशीन 1 was used for 6 months in 2021। तो पहले ये 6 months का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड इज WDV मेथड। WDV is 5,40,000, rate is 10%, depreciation rate is 10%। 6 months के लिए यूज हुआ है तो 6 months का depreciation, it is coming to how much? It is coming to how much? 27,000। सो 27,000 जितना डेप्रिसिएशन को माइनस करो, सो जैसे हमने 27,000 का डेप्रिसिएशन शेड्यूल में कैलकुलेट किया, सेम टाइम मेक इट अ हैबिट कि अकाउंट में भी लिखना है उसको। सो 27,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट्स में ऑन मशीन सोल्ड, हाउ मच? 27,000। सो डेप्रिसिएशन शेड्यूल में वापस आ जाओ। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद व्हाट डू वी गेट? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। एंड हमने कब तक का डेप्रिसिएशन माइनस किया? टिल द डेट ऑफ सेल। सो वी गेट WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, 1st July. 1 July 2021, WDV on the date of sale, coming to how much? 5,13,000। 13,000. मशीन को कितना में सेल किया? 3,86,000। 3,86,000 is what? The sale proceeds। शेड्यूल में लिखो सेल प्रोसीड्स 3,86,000। 3,86,000 में मशीन को बेचा है, तो बेचने के टाइम 3,86,000 बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो साथ साथ अपने को मशीनरी अकाउंट में भी इसको पोस्ट कर देना है। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, which means मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट्स में you will write sale proceeds, how much? 3,86,000। once again back to the schedule। अब शेड्यूल में देखो क्या समझ में आ रहा है? On the date of sale, the WDV was 5,13,000 and the machine was sold for rupees 3,86,000, which means there is a loss on sale. Loss on sale of machine. $5,13,000 के मशीन को बिजनेस ने 3,86,000 में बेचा है, so there is a loss on sale of rupees 1,27,000। सारे लॉसेस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं।
तो ये लॉस के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में By profit and loss. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट्स में लॉस ऑन सेल 1,27,000, राइट। ठीक है। अब शेड्यूल में कॉलम 1 मशीन 1 के लिए जो था वो क्लोज हो चुका है, तो अपने नीचे में क्रॉस कर देंगे इसको, यानी ये क्लोज हो गया। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मशीन अकाउंट में आ जाओ। मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में व्हाट यू कैन सी, तीन चीज अपने देख पा रहे हैं, एंड ये तीनों चीज मशीन 1 के लिए है विच हैज बीन सोल्ड। क्या है वो? 6 months का डेप्रिसिएशन 27,000, सेल प्रोसीड्स 3,86,000, लॉस ऑन सेल 1,27,000। ये तीनों अमाउंट फॉर मशीन सोल्ड है। तीनों अमाउंट का टोटल करो, तीनों अमाउंट का टोटल करो। व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट इज अमाउंट? 5,40,000। अब ये 5,40,000 क्या है? ध्यान से देखो, शेड्यूल में देखो, ये 5,40,000 ये है। क्लियर? लेट मी एक्सप्लेन। मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 7,30,000 है। ये 7,30,000 का ब्रेकअप मशीन 1 के लिए 5,40,000, मशीन 2 के लिए 1,90,000। करेक्ट? सो डेबिट साइड में जो बैलेंस बी बाई डी है 7,30,000, उसमें मशीन 1 का 5,40,000 है। अभी मशीन 1 के लिए ही मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5,40,000, यानी मशीन 1 जो है वो अकाउंट में से एग्जिट कर गया, हट गया, वो रिमूव्ड फ्रॉम द अकाउंट। तो अपॉन सेल, this is how machine is removed from the account. Very logical. Machine is what? An asset. Asset के लिए what is the golden rule? Debit, what comes in. Credit, what goes out. Machine 1 sold, goes out. So machine account will be credited. So look, machine account has been credited with rupees 5,40,000 in total. Clear? So this is a machine 1 exits from the account, removed from the account. अभी इस पॉइंट पर अगर अपने मशीन अकाउंट को बैलेंस करें, बैलेंस क्या आएगा? 1,90,000 जो मशीन 2 के लिए है, बिकॉज अभी एट दिस पॉइंट ओनली मशीन 2 इज इन हैंड। क्लियर है? नेक्स्ट, सो मशीन 1 सोल्ड and same date में machine 3 was purchased. 1st July 2021 machine 3 was purchased. So machine account के debit side में टू बैंक 4 लाख रुपीस। ओके, तो परचेज सेल हो गया है। अभी ईयर के एंड में आकर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। शेड्यूल में आ जाओ।
अभी मशीन 2 के रेस्पेक्ट में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा at the rate of 10% on WDV basis. So 1,90,000 into 19,000. 19,000. But machine 3 के रेस्पेक्ट में only 20,000. correct, correct, but absolutely correct. 4 lakh into 10% into 6 by 12 is equal to rupees 20,000. डेप्रिसिएशन को लेस कर दो. अभी ईयर एंड में टोटल डेप्रिसिएशन इज 19,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 39,000. सो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट नीचे में ब्रैकेट्स में 19,000 प्लस 20,000 is equal to 39,000. Done. Next, closing balance find out करो. And closing balance find out करके हम schedule के साथ 5,51,000. perfect. Schedule के साथ अपने को क्रॉस चेक कर. $5,51,000 by balance C by D. By balance C by D is what? The closing balance. Closing balance means the closing book value, which is the WDV. Because ये depreciation write off करने के बाद amount आया है. अब शेड्यूल में आ जाओ. शेड्यूल को भी कंप्लीट करना जरूरी है. शेड्यूल में WDV निकालो. 1,71,000 and 3,80,000. 1,71,000 and 3,80,000. This is WDV on 31st December 2021. टोटल करो. मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 का 1,71,000 plus 3,80,000 is 5,51,000. मशीन अकाउंट में भी सेम अमाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, हैज टू बी. तो एकदम सेल्फ चेक फुल प्रूफ तरीका है शेड्यूल के मदद से मशीन अकाउंट को बनाने का. ठीक है, इसमें मिस्टेक होने का चांस लगभग ना के बराबर है. ठीक है, यस. बाकी सब जन को क्लियर? एक बार शो मी अ थम्स अप. करेक्ट, पानी को क्लियर है. चौथा करिश्मा बागड़ी. चलो अभी the next and the most important discussion, very important discussion of this chapter is we shall understand a new, or we can say a modern method of depreciation accounting. Not method to charge or calculate depreciation.
a modern method for depreciation accounting. Okay, 100% participation is required. ठीक है, अगर अपने अटेंशन बीच में खो दिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा. ठीक है, फिर आप क्लास को संभाल नहीं पाओगे. ठीक है, to make sure that you are paying 100% attention. So अभी तक डेप्रिसिएशन का काउंटिंग हो कैसे रहा था? डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास कर रहे थे अपने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. This is the entry we pass to for depreciation accounting. Depreciation is an expense, increase debit. Asset जब depreciate होता है उसका value decrease, asset decrease credit. Clear? Now शुरू कर चुके अपने, राइट? सो ये एंट्री पास करने से, टेल मी, आई आस्क यू इजी क्वेश्चंस ओनली. पहले तो दिमाग में रखो कि सर अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसको हम क्विकली आंसर कर पाएंगे. तो मैं एक भी टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा. सो ये एंट्री पास करने के बाद एसेट का वैल्यू कम्स डाउन, यस और नो? आंसर इज यस. ठीक है, नेक्स्ट, ये एंट्री में एसेट अकाउंट गेट्स इफेक्टेड बिकॉज टू एसेट अकाउंट है, एसेट का वैल्यू कम्स डाउन, सो एसेट अकाउंट इज इफेक्टेड. आंसर इज यस. सो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू होता है एसेट का उसको हम रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं. उसको हम रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं. यानी एसेट अकाउंट, जैसे ये वाले सम में ये 5,51,000 के रिटन डाउन वैल्यू, 7,30,000 के रिटन डाउन वैल्यू. So asset account is maintained on WDV basis. ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड कैन बी SLM. डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड कैन बी WDV. डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड कैन बी सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, machine hour method, production method, depletion method, any method. बट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका एक ही नाम है, रिटन डाउन वैल्यू. और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यही एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. और ये एंट्री पास करने से एसेट अकाउंट इफेक्ट होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो वो WDV में मेंटेन होता है. ठीक है, अंडरस्टूड? सो एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन WDV. डेप्रिसिएशन चार्ज या कैलकुलेट करने का मेथड 6 ठो हमने पढ़ा है, तो उन 6 में से कोई भी मेथड हो सकता है. और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अपने एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो वो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है. इसके बाद एसेट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उस एसेट का WDV है ऑन द क्लोजिंग डेट. तो एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन WDV बेसिस. ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है जो अभी तक हमने सीखा. अभी आज अपने एक मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं. ये मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? क्लोज. ठीक है, ये मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है?
कि आप एसेट अकाउंट को एट ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन करो, यानी एसेट अकाउंट को WDV बेसिस में मेंटेन मत करो। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, क्यों बोलता है? एवरीथिंग वी शैल अंडरस्टैंड। क्यों ऐसा है? एवरीथिंग वी शैल अंडरस्टैंड। सो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि एसेट अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करो। तो अकाउंटेंट पूछता है, अगर मेरे को एसेट अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करना है तो वो तो तभी हो सकता है जब हम डेप्रिसिएशन का एंट्री पास नहीं करें। बिकॉज डेप्रिसिएशन का अगर एंट्री पास करेंगे, एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इससे तो एसेट अकाउंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, वो WDV पर आ जाएगा। तो अगर आप कहते हैं कि एसेट अकाउंट को ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करो, तो ये तो तभी हो सकता है कि जब डेप्रिसिएशन का एंट्री हम पास नहीं करें। तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन का तो एंट्री पास करना ही होगा। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस में एसेट को यूज कर रहे हैं तो यूज होने के कारण वो एसेट डेप्रिशिएट होगा। अगर बिजनेस एंटिटी एसेट को यूज कर रहा है तो यूज करने के कारण एसेट में वेर एंड टेयर होगा, एसेट डेप्रिशिएट करेगा। तो जब एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है यानी उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसका काउंटिंग तो करेंगे ही हम। तो डेप्रिसिएशन का काउंटिंग करना है, बट डेप्रिसिएशन का काउंटिंग ऐसे करना है, ऐसे करना है जिसको करने के बाद एसेट अकाउंट इज मेंटेन दैट ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन का काउंटिंग करना है बिकॉज एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि एसेट यूज हो रहा है तो उसको बुक्स में लाना है, बट उसका काउंटिंग ऐसे करना है कि एसेट अकाउंट इज मेंटेन दैट ओरिजिनल कॉस्ट। सो डेप्रिसिएशन का काउंटिंग अगर करना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, डेफिनेटली होगा, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट हम एसेट अकाउंट को नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हमने टू एसेट अकाउंट कर दिया तो एसेट अकाउंट WDV पर मेंटेन हो जाएगा, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन एसेट अकाउंट एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो इधर में टू एसेट अकाउंट नहीं कर सकते, क्योंकि टू एसेट अकाउंट करने से एसेट अकाउंट WDV में मेंटेन हो जाएगा और अब ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट अकाउंट को कॉस्ट में मेंटेन करना है। तो टू एसेट नहीं कर सकते। तो टू क्या करना है, मॉडर्न अप्रोच बोलता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देख लो, ये वाले एंट्री में एसेट अकाउंट इफेक्ट हुआ ही नहीं। तो एसेट अकाउंट अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो एसेट अकाउंट तो ओरिजिनल कॉस्ट में ही मेंटेन होगा, यानी जिस प्राइस पर एसेट परचेज हुआ था वो पूरे लाइफ उसी अमाउंट पर मेंटेन होगा। बिकॉज डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री क्या पास हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? अब काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं दिमाग में, बट होल्ड करके रखो, बिकॉज पूरा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, सो ये एंट्री हम पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? अब ईयर के एंड में, ध्यान सुनो, ईयर के एंड में वी नो दैट
we prepare profit and loss account and balance sheet. अब क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, तो हर एक नॉमिनल अकाउंट का अल्टीमेट डेस्टिनी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैसे? बाय ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हर नॉमिनल अकाउंट को अपने क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बैलेंस टानते नहीं है, अकाउंट को ही बंद कर देते हैं। जो भी अमाउंट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इससे डेप्रिसिएशन अकाउंट तो मेरा क्लोज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट करने से डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्लोज हो गया, बिकॉज इधर में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन करने से डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज, तो वो क्लोज हो चुका। बट प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस है, प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस है, क्या करें? ध्यान से सुनो, क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनो। तो हर साल हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टू चार्ज डेप्रिसिएशन, वी आर पासिंग द एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, एंड देन ईयर के एंड में P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो हर साल अगर एंट्री पास हो रहा है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट करते जा रहे हैं, बिकॉज आप प्रोविजन अकाउंट को क्या कर रहे हो? क्रेडिट। ये वाले एंट्री में देखो प्रोविजन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, है ना? ये सोनो, ये वाले एंट्री में प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हर साल हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, टू प्रोविजन करने से क्या हो रहा है? देखो, ये प्रोविजन अकाउंट है, प्रोविजन अकाउंट के बाई साइड में बाई डेप्रिसिएशन, इसको फिर हम क्लोजिंग डेट में बैलेंस करेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। देन नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट में बाय बैलेंस बी बाई डी। देन उस ईयर का डेप्रिसिएशन के लिए बाय डेप्रिसिएशन, देन क्लोजिंग डेट में टू बैलेंस सी बाई डी। देन उसके नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट में बाय बैलेंस बी बाई डी। देन उस ईयर का डेप्रिसिएशन के लिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो व्हाट आर वी डूइंग? एवरी ईयर the provision account is getting credited by the amount of depreciation. तो देखो ये ईयर वन का डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस किया, बिकॉज हम प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं पीएल में डालकर, बट प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। क्यों करते हैं? सब समझ में आएगा। तो बाय टू बैलेंस सी बाई डी ईयर वन का डेप्रिसिएशन, देन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर ये बाय बैलेंस बी बाई डी ब्रॉट डाउन हुआ, देन सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया टू बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस बी बाई डी, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो हर साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है दैट इज गेटिंग क्रेडिटेड इन प्रोविजन अकाउंट। सो बताओ, प्रोविजन अकाउंट अगर हर साल क्रेडिट हो रहा है, सो बाय डिफॉल्ट प्रोविजन अकाउंट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन अकाउंट का जो लेजर अकाउंट है दैट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस। देखो इधर में बाय बैलेंस बी बाई डी, बाय बैलेंस बी बाई डी इज व्हाट? क्रेडिट बैलेंस। सो प्रोविजन अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। अभी क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? It indicates depreciation till date. It indicates what? Depreciation till date. Because हर साल अपने क्या कर रहे हैं? बाय डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं अपने? बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस बी बाई डी, बाय डेप्रिसिएशन टू बैलेंस सी बाई डी,
देन बाय बैलेंस बी बाई डी बाय डेप्रिसिएशन. सो बैलेंस में हर साल डेप्रिसिएशन ऐड होते जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है. तो ये जो बैलेंस है, दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. इसमें टिल डेट सारे इयर्स का डेप्रिसिएशन ऐड किया. क्लियर? वो ऐड होते जा रहा है हर साल. बैलेंस में ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड होते जा रहा है. प्रोविजन अकाउंट के बैलेंस में हर साल ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड होते जा रहा है. सो बैलेंस इंडिकेट्स द accumulated depreciation till date. सिंपल सरल भाषा में इट इज टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट. सो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि प्रोविजन अकाउंट will always show a credit balance, and this credit balance is the amount of accumulated depreciation till date. और एक रूल हमेशा याद रख, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस के लिए लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को अपने क्या करते हैं? डेबिट. तो एक रूल हमेशा याद रखना, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को अपने डेबिट करते हैं. तो अगर कोई भी लॉस या एक्सपेंस के लिए प्रोविजन जब क्रिएट करते हैं, प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस और लॉस के अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बिकॉज इट इज प्रोविजन अगेंस्ट दैट एक्सपेंस. So the provision account will always have a credit balance. Losses expenses को डेबिट कर, एंड लॉसेस एक्सपेंसेस के लिए हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर. प्रोविजन मीन्स व्हाट? प्रोवाइडिंग फॉर दैट एक्सपेंस और लॉस. So and losses and expenses are debited. To provide for that expense or loss, provision account has to have a credit balance. That is why provision for bad debt has a credit balance. Bad debt is a loss. And if we are maintaining provision for bad debt, provision for bad debt will have a credit balance. Clear? ठीक है? Will have a credit balance. Okay? तो अभी इस पूरे प्रोसेस में एसेट अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ. तो एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट. An asset account has a debit balance. यानी बेसिकली देखो, ईयर के एंड में क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर क्लोज हो गया, बंद हो गया अकाउंट. बचा क्या मेरा? एसेट अकाउंट एक साइड में एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दूसरे साइड में. एसेट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस एंड एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन किया जा रहा है, बिकॉज डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री पास हो रहा है. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. एसेट अकाउंट को तो अपने बैलेंस करेंगे ना, बिकॉज एसेट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट को अपने क्लोज कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके, बट एसेट अकाउंट को बैलेंस करते हैं. इसका अमाउंट बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि ये एसेट अपने नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे. तो इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ठीक है, राइट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट काम कर रहा है. ये एसेट को अपने नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर मेरा बिजनेस वाइंड अप नहीं होने वाला है. तो नेक्स्ट ईयर मेरा बिजनेस चलेगा. इट्स अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. तो एसेट अकाउंट को अपने बैलेंस करते हैं, बिकॉज ये अपने नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे, तो इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर लेके जाना है. तो एसेट अकाउंट को बैलेंस किया. और एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बिकॉज जब ये एसेट परचेज हुआ था, एंट्री पास हुआ था एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. बट उसके बाद
फिर और कोई एंट्री इस अकाउंट में आया नहीं, बिकॉज डेप्रिसिएशन के लिए तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कर रहे हैं, तो इसमें एसेट अकाउंट इफेक्ट हुआ नहीं, तो एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट. सो एसेट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस and this debit balance is the amount of original cost. Okay, clear है? Then provision for depreciation account, as we have discussed, shows a credit balance, and this credit balance is what? The amount of accumulated, means total depreciation till date, means right from the date the asset was put to use till the current balance sheet date, accumulated depreciation till date. क्लियर है? तो बैलेंस शीट के डेट में एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस शोइंग द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट. तो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसा होगा? प्रेजेंटेशन देखो, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में से एसेट का नाम ले लेते हैं मशीन अकाउंट. अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स बनेगा. अब ये जो मशीन है यानी एसेट अकाउंट, ये ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन हो रहा है, इसका डेबिट बैलेंस है. साथ में प्रोविजन अकाउंट भी चल रहा है जिसको हमने बैलेंस किया है, बट उस प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. तो डेबिट क्रेडिट एक दूसरे का एंटी होता है, और दोनों को अगर अपने सेम साइड ऑफ द बैलेंस शीट रखते हैं तो प्लस प्लस करके रखेंगे या माइनस करके रखेंगे? माइनस करके रखेंगे. तो इधर में माइनस यानी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, less provision for depreciation, which is accumulated depreciation till date. अब लेस करके जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में, कैन यू टेल मी what will be this amount? The WDV. बिकॉज इनर कॉलम में हम क्या कर रहे हैं? मशीन अकाउंट एट कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट है, उसमें से लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विच इज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम WDV बोलते हैं. तो आउटर कॉलम में जो नेट अमाउंट आ रहा है दैट इज द WDV ऑफ द असेट ऑन दैट डेट. क्लियर? तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम फॉलो करने से क्या होता है, जो भी बिजनेस के बैलेंस शीट को देख रहा है, बैलेंस शीट से उसको सारे इंफॉर्मेशन पता चल जा रहे हैं. क्या क्या पता चल रहे हैं? 3 इंफॉर्मेशन उसको पता चल रहा है. उसको ये पता चल रहा है कि मशीन जो है वो कितना में खरीदा गया था, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट पता चल रहा है. सेकेंड, उसको ये पता चल रहा है कि मशीन जब से पुट टू यूज हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर टिल डेट अब तक कितना यूज हो चुका है मशीन, अब तक कितना डिप्रिशिएट हो चुका है. द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट पता चल रहा है. थर्ड, उसको उस मशीन के आज के डेट का रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू ही पता चल रहा है. सो 3 इंफॉर्मेशन, जो भी अगर ये सिस्टम फॉलो होता है, ये सिस्टम फॉलो हुआ है, तो जो भी बैलेंस शीट को देख रहे हैं, बिजनेस के बैलेंस शीट से 3 चीज उसको पता चल रहा है. मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट यानी कितने कितने अमाउंट पर मशीन परचेज हुआ, जब परचेज हुआ था तो ये कितने का मशीन था. एंड सेकेंड, जब से ये मशीन पुट टू यूज हुआ टिल द डेट, टिल द करेंट डेट बैलेंस शीट, कितना ये एसेट यूज हो चुका है, यानी कितना डेप्रिशिएट हो चुका है. एंड देन थर्ड, करेंट डेट का रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ दैट मशीन. तो सारा इंफॉर्मेशन वो समझ में आता है. That is why this modern approach is superior to the traditional approach जो कि अभी तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं. बट अब ये अप्रोच
आज जब हमने सीख लिया है तो आज से लेकर टिल लाइफ टाइम हमें यही अप्रोच फॉलो करना है, बिकॉज कोई भी बिजनेस एंटिटी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोल कर देख लो, हर एक बिजनेस एंटिटी यही मॉडर्न अप्रोच फॉलो करता है फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। यानी अभी से डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री क्या याद रखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब एग्जाम में डेफिनेटली दे विल स्पेसिफाई कि अपने को प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करना है या नहीं करना है। करने के लिए बोलेगा तो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है, प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है तो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना है। दैट इज फॉर एग्जाम पर्पस, बट फॉर रियल लाइफ हमें इसी मेथड को आज से अप्लाई करना शुरू कर देना है। क्लियर है? Yes, sir. If the question is silent, then we will, विल डिस्कस ऑल दैट। अभी कोई डाउट नहीं है सच? the method of the question is silent, then विल डिस्कस दैट। एनीथिंग एल्स? चलो, provision is transferred to clear account. व्हाई? State account. So the liabilities is also transferred to PL account. Then it's- Capital also. Unnecessary, do not confuse yourself. फिर पढ़ के भी एग्जाम में खिचड़ी बनाकर आ जाएंगे, and that खिचड़ी will be a tasteless खिचड़ी। or debtors transferred. चला जा। This is the modern system of depreciation accounting. Under the system, depreciation is charged by passing the entry depreciation account debit to provision for depreciation account. This means that the asset account is not affected with depreciation, and so the asset account is maintained at its original cost. So asset account has a debit balance, and that debit balance is the amount of its original cost of the asset. The provision for depreciation account gets credited by the amount of depreciation every year. So provision for depreciation account shows a credit balance, which is the amount of accumulated depreciation till date. Okay. So why it is there? So Already answered. ठीक है, चलो। Clear? You were not paying attention. You were thinking something. ठीक है, whatever you follow. हाँ, for that. ठीक है, अभी क्लास के एंड में पूछना जो भी डाउट, वो फ्लो टूट जाएगा, फिर आप ही का लेक्चर हो जाएगा, है ना? ओके, नाउ ध्यान से सुनो। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एंड द एसेट अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। And provision account shows a credit balance, which is the amount of accumulated depreciation till date. ये जब सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है तो ऐसे में जब भी कोई एसेट को अपने सेल करते हैं, whenever there is a sale of any asset, we open a separate account for accounting of sale of an asset, and this separate account is called asset disposal account. Asset disposal account. So जब भी ये सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉलो होता है
जिसमें हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए एंट्री पास करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जिधर एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन होता है। देन इन दिस केस जब कोई एसेट को सेल करते हैं तो सेल के अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। It is common. Once again I'm telling, please let me complete. ठीक है, or should I stop? Should I? Because मेरा concentration खराब हो जाएगा, लेक्चर खराब हो जाएगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। I'll suspend the class. ठीक है, don't do this. So ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, अब एसेट डिस्पोज हो रहे हैं यानी सेल आउट हो रहे हैं, तो एसेट बिजनेस में से जा रहा है। तो बिजनेस एसेट का घर है, तो एसेट अपने घर से जा रहा है हमेशा के लिए। तो जब भी हम अपने घर से जाते हैं, अपना सामान बांध के जाते हैं, सूटकेस लेके जाते हैं, तो उस एसेट का सूटकेस का नाम एसेट डिस्पोजल अकाउंट है। तो ये एसेट का सूटकेस है जिसमें एसेट अपना सामान को बांध कर बिजनेस में से आउट एग्जिट करेगा। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, एसेट बिजनेस में से जा रहा है, डिस्पोज हो रहा है, सेल हो रहा है, तो अपने उसका सूटकेस में सामान को पैक करेंगे। सूटकेस का नाम इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस एसेट का सामान क्या क्या है और ये सामान कहां कहां क्या क्या है, एसेट का सामान कहां पर और क्या क्या सामान है। तो ये जो एसेट डिस्पोज हो रहा है, ये अपना सामान दो अलमारी में रखता। वो दो अलमारी का नाम क्या है, नंबर 1 एसेट अकाउंट में, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो दो अलमारी है इसका। एसेट अलमारी का नाम क्या है, एसेट, दूसरा इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस एसेट अकाउंट के अलमारी में क्या पड़ा है, इस एसेट का, इस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट। एंड प्रोविजन अकाउंट के अलमारी में क्या पड़ा हुआ है इस एसेट का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो अभी एसेट सेल हो रहा है, डिस्पोज हो रहा है, बिजनेस को छोड़कर एसेट जा रहा है, तो जाने से पहले वो अपना सूटकेस पैक करेगा। सूटकेस का नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जिसमें उस एसेट की पैकिंग होगी। अलमारी में से सामान को निकाल करके सूटकेस में डालेंगे, अलमारी में से सामान को निकालकर सूटकेस में डालेंगे। दो अलमारी है, एक है एसेट अकाउंट, दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक है एसेट अकाउंट, दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब एसेट अकाउंट के अलमारी में क्या है, क्या पड़ा है उस एसेट का, उस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट एसेट अकाउंट में है। प्रोविजन अकाउंट के अलमारी में क्या रखा है, उस एसेट का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन। तो क्या करना है, सूटकेस को पैक करेंगे। सूटकेस को पैक कैसे करना है, एसेट का सामान को रखना है, तो एक एक करके एसेट का सामान को निकालेंगे। पहला अलमारी है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट पड़ा है।
क्लियर। तो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट को, जो एसेट सेल हो रहा है, जो एसेट सेल हो रहा है, उस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकालकर हम डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे। जो एसेट सेल हो रहा है, उस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट को हम एसेट अकाउंट में से निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे। निकालने का काम कैसे करना है? एसेट अकाउंट में आ जाओ। एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में ही ओरिजिनल कॉस्ट है। अब इस एसेट अकाउंट में से ओरिजिनल कॉस्ट को निकालना है, निकाल कर डिस्पोजल अकाउंट में डालना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करें? एसेट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट? एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट पड़ा हुआ है, तो उस ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकालने के लिए एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कैसे, किससे करें? बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बिकॉज ये ओरिजिनल कॉस्ट को हमें निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में डालना है, तो इसलिए बाय डिस्पोजल अकाउंट। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू एसेट अकाउंट। ये क्या है? एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या? एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट। परफेक्ट। तो एक अलमारी तो खाली कर दिया, अलमारी खाली हो गया। अब इस एसेट अकाउंट में कुछ नहीं बचा, बिकॉज इस एसेट अकाउंट में एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट था। अब उसको हमने निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया, तो एसेट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा विथ रेस्पेक्ट टू दिस एसेट। विथ रेस्पेक्ट टू दिस एसेट, एसेट अकाउंट में अब कुछ नहीं है, बिकॉज आपने एसेट अकाउंट में से इस एसेट का जो सेल हो रहा है उसको ओरिजिनल कॉस्ट को निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया। तो एसेट अकाउंट के दरवाजे इसके लिए बंद हो चुके हैं। इसने अपना सामान इस अलमारी में से निकाल लिया है, तो अब निकालकर अलमारी को बंद कर देगा। परफेक्ट। अभी एक और अलमारी में उसका सामान पड़ा हुआ है। दूसरे अलमारी का नाम क्या है? प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट में क्या है? इस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट है, तो इसको भी प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में डालना है। अब प्रोविजन अकाउंट में देखो, प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी है, यही है एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो इसको अब क्या करना है? एस प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में डालना है। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है, बाई बैलेंस बी बाई डी में। क्लियर है? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में टू एसेट डिस्पोजल, सो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट पड़ा हुआ है, तो उसको प्रोविजन अकाउंट में से निकालने के लिए प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? डिस्पोजल अकाउंट, बिकॉज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकालकर हमें डिस्पोजल अकाउंट में डालना है। तो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल छोटा सा क्लैरिफिकेशन। अगर सेल ऑफ एसेट मिड ऑफ द ईयर हुआ है, सेल ऑफ द एसेट मिड ऑफ द ईयर हुआ है, यानी ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ठीक है, तो जिस ईयर एसेट का सेल हुआ है उस ईयर वो सेल होने से पहले फॉर सम मंथ्स यूज हुआ होगा, से फॉर 3 मंथ्स यूज हुआ है, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए सेल का एंट्री पास करने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन अकाउंट के बाई साइड में आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड फॉर 3 मंथ्स, तो ये भी ऐड हो गया। तो ये टोटल बन गया मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल।
इसको कहां पर है, ये प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसको प्रोविजन अकाउंट में से निकालने के लिए प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करना है, डेबिट साइड में टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। सो अल्टीमेटली टिल डेट ऑफ सेल, accumulated depreciation till the date of sale हम प्रोविजन अकाउंट में से निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में इस तरीके से डाल देंगे। अभी इस पॉइंट पर प्रोविजन अकाउंट में से भी वो एसेट का सामान निकल गया है, तो प्रोविजन अकाउंट के भी दरवाजे उस एसेट के लिए बंद हो चुके हैं। तो प्रोविजन अकाउंट में से वो अपना सामान निकालकर प्रोविजन अकाउंट में भी ताला मार देगा। प्रोविजन अकाउंट भी उस एसेट के लिए बंद हो चुका है। तो एसेट अकाउंट बंद हो चुका है, प्रोविजन अकाउंट बंद हो चुका है फॉर दैट एसेट विच इज सोल्ड। बाकी एसेट के लिए तो वो खुला है। ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एट दिस पॉइंट आप देखो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट एट दिस पॉइंट आप देखो कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड में टू एसेट अकाउंट है। जो अमाउंट है वो क्या है, उस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट। एंड ठीक ऑपोजिट साइड, क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ये अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट, टिल द डेट ऑफ सेल। सो डेबिट साइड में एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है टू एसेट अकाउंट करके, क्रेडिट साइड में डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट है बाय प्रोविजन अकाउंट करके। तो एट दिस पॉइंट अगर हम डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करें, आगे एंट्रीज पास करने से पहले, आगे के एंट्रीज पास करने से पहले अगर अपने एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर अभी तक हम हैं, उस पॉइंट पर अगर अपने एट दिस पॉइंट हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करें, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा, WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। बिकॉज डेबिट साइड में एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, क्रेडिट साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, बिकॉज अपने ईयर ऑफ सेल का भी डेप्रिसिएशन इसमें डाल दिए थे। क्लियर? सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन द डेबिट साइड, ऑपोजिट साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट। एट दिस पॉइंट अगर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करें, द बैलेंस विल बी द WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। WDV ऑन द डेट ऑफ सेल मिल गया। अब एसेट को जिस प्राइस में बेचा है उसके लिए क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा फॉर श्योर, बट क्या टू एसेट अकाउंट कर सकते हैं अपने? नहीं, बिकॉज एसेट अकाउंट का दरवाजा इस एसेट के लिए बंद हो चुका है। एसेट अकाउंट में से इसने अपना सारा सामान निकाल लिया था, करके उसने एसेट अकाउंट को ताला मार दिया, तो एसेट अकाउंट के सारे दरवाजे इस एसेट के लिए बंद हो चुके हैं। सिर्फ कौन सा दरवाजा खुला है, डिस्पोजल अकाउंट का दरवाजा खुला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट की जगह टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट का दरवाजा इस एसेट के लिए बंद हो चुका है। सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है, वह है डिस्पोजल अकाउंट। इसका पूरा हिसाब डिस्पोजल अकाउंट में रखा जा रहा है। डिस्पोजल अकाउंट अपने ओपन ही करते हैं सेल ऑफ एसेट के लिए। तो जिस प्राइस में एसेट सेल हुआ है उसका अमाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आएगा, बिकॉज डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन ही सेल ऑफ एसेट के लिए करते हैं। तो सेल का अमाउंट डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। एंट्री पास होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक में रुपया आया बोलकर, टू डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक करने से पहले डिस्पोजल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा था दैट वाज WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। अभी हमने बाय बैंक करके सेल प्रोसीड्स को डाल दिया है। तो दो चीज है, एक है WDV ऑन द डेट ऑफ सेल, दूसरा है सेल प्रोसीड्स। दोनों के बीच का डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल।
WDV ऑन द डेट ऑफ सेल एंड सेल प्रोसीड्स के बीच में डिफरेंस जो है दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो या तो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा बैलेंसिंग फिगर। अगर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल है या लॉस ऑन सेल है? इट इज प्रॉफिट ऑन सेल, बिकॉज प्रॉफिट ऑन सेल के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। प्रॉफिट ऑन सेल होगा तभी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसमें देखो, टू P&L का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है। एंड बाई P&L का मतलब क्या, इट इज अ लॉस ऑन सेल बिकॉज P&L अकाउंट डेबिट हुआ है। करने के बाद द एसेट डिस्पोजल अकाउंट गेट्स स्क्वेयर्ड ऑफ। करने के बाद द एसेट डिस्पोजल अकाउंट गेट्स स्क्वेयर्ड ऑफ। Zero. जीरो बैलेंस, नो बैलेंस, खत्म, एंड, द एंड। सिंगल पैसा विल नॉट बी लेफ्ट इन द डिस्पोजल अकाउंट। सूटकेस पैक करके एसेट गया, टाटा बाय बाय, गॉन फॉर एवर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। Sale of an asset when provision for depreciation account is maintained. A separate account, asset disposal account, is opened for accounting of sale of an asset. Step 1. Charge a depreciation for the months or the days the asset was used in the year of sale. Entry will be the entry for depreciation under this method is depreciation account debit to provision for depreciation account. So provision for depreciation account के क्रेडिट साइड में ईयर ऑफ सेल का भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जितने मंथ्स या डेज के लिए एसेट यूज हुआ था इन द ईयर ऑफ सेल, उतने टाइम का डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट के बाई साइड में आ गया। स्टेप 2, रिमूव ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड फ्रॉम एसेट अकाउंट, जिसके लिए एंट्री इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये सोनो देखो इधर में क्या किया हमने, एसेट अकाउंट के बाई साइड में बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट के टू साइड में टू एसेट अकाउंट। तो एंट्री क्या पास हुआ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट के बाई साइड में बाय एसेट डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट के टू साइड में टू एसेट अकाउंट। एंड ये जो एंट्री पास होगा दैट विल बी फॉर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट sold. Remove accumulated, which means total depreciation till the date of sale from provision for depreciation account. Provision for depreciation account के क्रेडिट साइड में depreciation till date पड़ा हुआ है, तो उसको वहां से निकालने के लिए प्रोविजन अकाउंट को डेबिट, तो प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, निकालकर हम कहां डालेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, डिस्पोजल अकाउंट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। At this point, the debit side of asset disposal account shows the original cost of the asset sold, and the credit side shows, credit side of the asset disposal account shows accumulated depreciation till date. So the net balance in asset disposal account at this point is the WDV on the date of sale. So अभी asset disposal account में क्या आ रहा है, WDV on the date of sale. Sale proceeds of the assets sold के लिए entry will be bank account debit to asset disposal account with the amount of sale. Now balance the disposal account to find the profit or loss on sale of the asset.
अगर प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के टू साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, जिसके लिए एंट्री इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर लॉस ऑन सेल हुआ तो डिस्पोजल अकाउंट के बाई साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सो एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल नाउ गेट क्लोज्ड। क्लोज्ड मींस इसका बैलेंस नहीं बचेगा, ठीक है। तो दिस इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। क्लियर है? तो ये सारे एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हमने सीखा। जर्नल एंट्रीज विथ हाउ टू पोस्ट एंड मेंटेन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। अब इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी डिस्कशन हमने किया है उसका एप्लीकेशन हम करें, तभी जाकर वो डिस्कशन हमारे दिमाग में सेट होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एट दिस पॉइंट हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करें। एग्जाम्पल है आपके सामने, अ मशीन इज परचेज्ड। हम लोग को करना क्या, पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट यानी असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द इयर्स 21-22, 22-23, 23-24, यानी 3 साल। Financial year is the accounting year. A machine is purchased on 1/4/2021 for rupees 1 lakh. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on WDV basis. WDV basis. This machine was sold on 30th September 2023 for rupees 55,000. तो एक ही मशीन का क्वेश्चन है और 3 अकाउंट बनाना है, 3 साल के लिए बनाना है। तो करते हैं इसको। लिखो, एग्जाम्पल क्वेश्चन। प्रिपेयर फटाफट। Disposal account will be maintained only one. Only in the year of sale. Only in the year of sale. Why? Because it is for accounting of sale of an asset. So if half part is sold 1 year and Even if 100 grams of an asset is sold, एसेट का एक पॉइंट पे अगर सेल होता है तो उसके लिए डिस्पोजल हो ही सकता है। बिजनेस एंटिटीज में कहते हैं मशीनरी इज अ ह्यूज थिंग, तो मशीन का एक पार्ट को भी अपने सेल कर सकते, तो जो भी पार्ट अपने सेल करे उसका पूरा अकाउंटिंग डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। बिकॉज लार्ज बिजनेस एंटिटीज में से मेरे में ये दिस इज मशीन, बट लार्ज बिजनेस एंटिटीज इज अ ह्यूज मशीन, सीरीज ऑफ ऑल द मशीन्स, है ना, प्लांट पूरा जो होता है। क्लियर? चलो शुरू करें। डिस्पोजल अकाउंट जैसे मैंने कहा ओनली इन द ईयर ऑफ सेल बनेगा, उससे पहले डिस्पोजल अकाउंट का कोई काम है ही नहीं। तो मशीन परचेज हुए 1 अप्रैल 2021 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज 1 लाख। क्लियर है?
सो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 1 अप्रैल 2021 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। 21-22 में ये वाला मशीन फुल ईयर के लिए यूज हुआ, बिकॉज ये 1 अप्रैल को ही परचेज हुआ था एंड ईयर एंड होता है 31 मार्च, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट इज 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। सो 1 लाख का 10% इज 10,000। डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 March 2022, 31 March 2022 year end account, year end depreciation account debit to provision for depreciation. So provision for depreciation account के credit side में by depreciation account 10,000 डेफिनेटली अपने ब्रैकेट्स में कैलकुलेशंस को शो करेंगे, राइट? ओके, अभी ईयर के एंड में आ जाओ। 21-22 में और कुछ नहीं, अभी ईयर के एंड में आ जाओ। 31 March 2022 बैलेंस करो। बाय बैलेंस सी बाई डी ₹1 लाख। मशीन अकाउंट बाय बैलेंस सी बाई डी ₹1 लाख। प्रोविजन अकाउंट को बैलेंस करो। टू बैलेंस सी बाई डी ₹10,000। टू बैलेंस सी बाई डी ₹10,000, ठीक है। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 22-23 का ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी ₹1 लाख एंड प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी बाई डी 10,000। कंसेप्ट्स को चेक करो। देखो, मशीन अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट, हैज अ डेबिट बैलेंस, अमाउंट इज ₹1 लाख which is original cost. The method is stagnant. Provision account has a credit balance and the amount is 10,000 which is year 1 का depreciation, because अभी एक ही साल हुआ है। अब अगर ठीक है, सपोज आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर अपने को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2022 खाली असेट साइड का बनाते हैं। खाली एसेट साइड का बनाते हैं।
जो भी ईयर एंड हुआ ना 31 मार्च 2022, उस डेट का बैलेंस शीट अपने बना रहे हैं। तो एसेट साइड में मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट में मेंटेन हो रहा है। अमाउंट इज रुपीज 1 लाख लेस मशीन अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, उसमें से लेस प्रोविजन फॉर एप्रिसिएशन विच हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो लेस कर दिया। हाउ मच? 10,000। तो आउटर कॉलम में जो अमाउंट आ रहा है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 90,000 आ रहा है। ये 90,000 क्या है? WDV। WDV ऑन 31 मार्च 2022। WDV ऑन 31 मार्च 2022 यानी 1 अप्रैल 2022। क्लियर है? एंड इस क्वेश्चन में अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज कौन से मेथड से करना है? WDV मेथड। सो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, जिस ईयर में हम आ चुके हैं 22-23 में, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, मेथड इज WDV मेथड। सो WDV मेथड है तो डेप्रिसिएशन WDV पर कैलकुलेट होगा। एंड 1 अप्रैल 2022 को WDV इज 90,000। सो 10% ऑन रुपीज 90,000। क्लियर है? Question is same. Question is same. करेक्ट, हियर इट इज। ओके, So if it was silent there also, नो, it will never be silent, it will always mention. the class level is to silent there. Hmm. Okay, so 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के ईयर एंड 31 मार्च 2023 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन इज 10% of WDV which is 90,000. Entry will be depreciation account debit to provision for depreciation account. So provision account की credit side में by depreciation account. $9,000 is the amount of depreciation. अब इन दोनों लेजर अकाउंट को बैलेंस करो ईयर के एंड में 31 मार्च 2023। करो बैलेंस। 2 बैलेंस C/D कितना आ रहा है? 19,000। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2023, बैलेंस ब्रॉट डाउन करो 1 अप्रैल 2023। 2 बैलेंस B/D। मशीन अकाउंट में देखो 1 लाख आ रहा है।
प्रोविजन अकाउंट में 1 अप्रैल 2023, बाय बैलेंस बी बाई डी 19,000। चेक करो कॉन्सेप्ट को। मशीन अकाउंट इज असेट अकाउंट, डेबिट बैलेंस अमाउंट इज 1 lakh which is original cost. Provision account has a credit balance, amount is rupees 19,000 which is accumulated depreciation till date. असेट को यूज करते हुए कितना साल हो चुका है? 2 साल हो चुके हैं। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन 10,000, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन 9,000, सो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट इज 19,000। वही है प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस। अब अगर हम 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के असेट के साइड में मशीनरी एट कॉस्ट 1 lakh लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 19,000। So outer column में the net amount is 81,000 which is WDV. Yeah. So WDV on 31st March 2023 is 81,000. Clear है? Next. Now we are in the year 23-24. 23-24 में क्या हुआ? This machine was sold on 30th September 2023 for rupees 55,000. सो ये मशीन को हमने सेल किया 30th सितंबर 2023, यानी सेल करने से पहले 23-24 ईयर में ये कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ। तो सबसे पहले तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 30th सितंबर 2023 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन का रेट इज 10%, मेथड इज WDV मेथड। सो WDV कितना है बोलो? 81,000। सो 81,000 पर 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इज 81,000 इंटू 10% इंटू 6/12 इज ओके। कैलकुलेट करो, इधर में शो कैसे करना है देखो। तो 81,000 इंटू 10% इंटू 6/12 इज 4050, राइट। अभी एसेट सेल हो रहा है, तो सेल ऑफ एसेट के अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा विच इज कॉल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो अभी हम नेक्स्ट एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे। एसेट डिस्पोजल अकाउंट बिल्कुल एक सूटकेस है, तो ये सूटकेस में पैकिंग शुरू। नेम इज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अब इस मशीन का कौन सा सामान कहां पर है? 2 अलमारी में इसका सामान पड़ा हुआ है, एक है मशीन अकाउंट, दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट में क्या है? इस मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा साइड में? डेबिट साइड में। तो ओरिजिनल कॉस्ट को मशीन अकाउंट में से निकालने के लिए मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे? डिस्पोजल अकाउंट। सो एंट्री क्या पास होगा?
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 30th September 2023 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख. एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में 30th September 2023 to machinery account. How much? 1 lakh. अब देखो ना, मशीनरी अकाउंट विच इज द एसेट अकाउंट इस एसेट के लिए बंद हो चुके हैं. हट गया ये एसेट मशीन अकाउंट में से. Special full machine is so. यस, एक ही मशीन का क्वेश्चन है. अगर दो मशीन होता तो मशीन अकाउंट में बैलेंस बचता फॉर द सेकेंड मशीन. मतलब मशीन अकाउंट में जो बैलेंस बचता दैट विल बी फॉर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 2. वो बैलेंस को अपने कैरेट डाउन करते हैं. नेक्स्ट इसका सामान और कहां पड़ा हुआ है? प्रोविजन अकाउंट में पड़ा हुआ है. प्रोविजन अकाउंट में क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट प्रोविजन अकाउंट में किधर है? क्रेडिट साइड में. तो उसको प्रोविजन अकाउंट में से निकालने के लिए प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को. तो एंट्री पास होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. तो प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. तो प्रोविजन अकाउंट में से हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट को निकालकर डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया. कितना आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट? 30. ये लगभग 2.5 years का डेप्रिसिएशन है. 23,050. क्लियर? सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के बाई साइड में corresponding posting by provision for depreciation account. कितना? 23,050. अब देखो, एट दिस पॉइंट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जो बैलेंस है, कितना बैलेंस आ रहा है? डेबिट साइड में मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है टू मशीनरी अकाउंट करके, क्रेडिट साइड में मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके. सो डेबिट साइड में मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट, क्रेडिट साइड में मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट. सो एट दिस पॉइंट अगर अपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कितना आ रहा है? 1 लाख माइनस 23,050, which is the WDV on the date of sale 76,950. So 76,950 is the WDV on the date of sale. सेल कितना में किया है? 55,000 में किया है. सेल के लिए क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. बिकॉज मशीन डिस्पोजल अकाउंट ओपन किस लिए किया है? सेल ऑफ एसेट की अकाउंटिंग के लिए. तो सेल का अमाउंट शुड कम इन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बिकॉज वैसे भी मशीन अकाउंट तो इस एसेट के लिए बंद हो चुका है मशीन के, है ना. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. मशीन डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट विद अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स. हाउ मच इज इट? 55,000. सो देखो WDV ऑन द डेट ऑफ सेल कितना आया था? 76,950. WDV ऑन द डेट ऑफ सेल कितना था? 76,950. एंड मशीन को आपने कितना में बेचा? 55,000. सो देयर इज अ लॉस ऑन सेल
76,950 minus 55,000, it is coming to 21,950. 21,950 is लॉस ऑन सेल. लॉसेस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल. इसको हम एज अ बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं, बट मैंने जानबूझ के इस एग्जाम्पल में बैलेंसिंग फिगर करके नहीं निकाला है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि एंड में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट गेट्स क्लोज्ड, यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 1 रुपए का बैलेंस भी नहीं बचेगा, बिकॉज हमने लॉस ऑन सेल को कैलकुलेट किया है, राइट. एज अ बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला. देखो मशीन डिस्पोजल अकाउंट बंद हो चुका है, 1 रुपए का बैलेंस नहीं बचा. क्लियर है? तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन when provision for depreciation account is maintained. Question will specify provision for depreciation account is maintained. Clear? तो ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है. अभी अपना काम क्या है कि इस टॉपिक में से इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें वी शैल अंडरस्टैंड कि जब एक से ज्यादा मशीन्स होता है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करना है, तो इन दैट केस मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, दैट वी शैल अंडरस्टैंड. क्लियर है? ओके, दैट वी शैल डू इन द नेक्स्ट क्लास. क्लियर आज का डिस्कशन? यस. एक और चीज, इवन इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, शेड्यूल जिस तरीके से हमने प्रिपेयर करना सीखा था उसमें देयर इज नॉट अ सिंगल चेंज. मतलब इवन व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, शेड्यूल जिस तरीके से हमने प्रिपेयर किया था, करना सीखा है, वैसे ही प्रिपेयर करेंगे. शेड्यूल के प्रिपरेशन में देयर इज नो चेंज, नॉट अ सिंगल चेंज इज देयर, राइट. तो शेड्यूल के साथ ये सारे लेजर अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, शेड्यूल को प्रिपेयर कैसे करना है, शेड्यूल के साथ इन सारे लेजर अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, दैट वी शैल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास विथ इलस्ट्रेशन नंबर 8. ओके, चलो देन आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर.